اساتذہ، پڑھنے والے طلبا اگر یہ قبرستان سے گزر جائے، پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر، تمہارے ساتھ قبرستان تک گئے، جا کر کھڑے ہو گئے، مٹی دے کے واپس آ گئے، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ قدموں کی برکتوں سے 40 دن کا عذاب دور کر دیتا ہے۔ میرے دوست عزیزان ملت سے اسلامیہ، آؤ تو صحیح، مدرسے میں آؤ تو صحیح، کب پتا چلے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے؟ ایک بات بتا دو، ڈگری کتنی بھی حاصل کیوں نہ کر لے، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے گا میرے دوست، مگر تجھے انسانیت نہیں مل سکتی۔ دنیا کمانے کے لیے اللہ اکبر تو آگے بڑھ سکتا ہے، کروڑوں کا بنگلہ بنا سکتے ہو، اربوں خربوں کی سمپتی اکٹھی کر سکتے ہو، دنیا خرید سکتے ہو، مگر میرے دوست انسانیت سیکھنے کے لیے اللہ اکبر اپنی زندگی میں کسی انسان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، انسان بننے کے لیے قاری اکبر کے مدرسے میں ایڈمیشن کرانا ضروری ہے۔ ڈگریاں دنیا سے حاصل کرو، مگر کوئی بھی یونیورسٹی انسانیت نہیں بناتی ہے۔ انسانیت کے لیے قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے قرآن اتار دیا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے اس ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن جیسی مبارک کتاب ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں ذرہ برابر کجی نہیں ہے، قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ شک کہاں سے ہو میرے دوست حفیظان ملت اسلامیہ؟ کس محبوب پر یہ قرآن اترا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میری زندگی کو پڑھو، کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کو پڑھ لیا ہے، کہا قرآن کو پڑھو، یا رسول اللہ قرآن کو پڑھ لیا ہے، بتاؤ قرآن میں، کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں ذرہ برابر کجی نہیں ہے، قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میری زندگی کو پڑھا، کہا یا رسول اللہ چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کے پیچھے چلتے ہیں، جاتے ہیں کسی کے گھر پہ دسترخوان میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں تو آپ کے سامنے، کہا قرآن میں مجھ نے کچھ پڑھا، کہا یا رسول اللہ ان دیوانے تو یہی کہیں گے جو آپ ہیں وہ قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ آپ ہے، قرآن بھی پاک ہے، آپ کی ذات بھی پاک ہے، قرآن بھی ہر ایک طرح سے پاک، آپ کی ذات بھی پاک، نہ قرآن کو صحابہ سمجھ سکے نہ آپ کی ذات کو سمجھ سکے، تو پتا چل گیا کہ جو مصطفیٰ ہے وہ قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ نہ مصطفیٰ کی زندگی میں شک ہے نہ قرآن کی زندگی میں شک ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا احسانی، سبحان اللہ۔ مگر حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں تو قرآن پڑھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا، کوئی 20 دن کے بعد، کوئی 40 دن کے بعد، اگر کسی کا 20 ماہ 40 ماہ تیجا ہے تب تیرے ہاتھ میں قرآن آ گیا، پاؤں پارے میں 1 گھنٹہ لگا دیتا ہے، کبھی ہجے سے پڑھتا ہے کبھی ربا پڑھتا ہے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا جب میرے مصطفیٰ کا وصال کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکبر جب قرآن کی آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدیق رونے لگے، عمر رونے لگے، صدیق سمجھ گئے کہ اب میرے مصطفیٰ کا وصال کا وقت قریب آ گیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بنا کیسے زندگی گزاریں گے، یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ تو صحیح آپ اگر دنیا سے چلے گئے ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اہل بیت سے محبت کر لینا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، آج ہم قرآن کو کہاں پکڑنے کی بات، اللہ اکبر، 1 سال گزر جاتا ہے، یہ نوجوان رمضان میں قرآن کو پڑھنے کے بعد کبھی کھول کے نہیں دیکھتا، اسلام کی بیٹیاں صبح میں قرآن پڑھ کے نہیں دیکھتی۔ ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا تھا، کہاں وفا ملتی ہے ملتی کے ان حسین انسانوں سے ایک بار، بغیر مطلب کے تو اب یہ خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ باپ تیرا مرتا ہے تو سورہ یاسین پڑھواتا ہے، باپ کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو سورہ یاسین پڑھواتا ہے، کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھواتا ہے۔ امام صاحب 20 بچوں کو بھیج دو، کاروبار نہیں چل رہا قرآن خانی ہو گئی ہے، والد صاحب کی طبیعت دلیل ہے ذرا شفا کے لیے قرآن خانی ہوتی ہے،
डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ए नादान इंसान, तूने कुरान को गम के लिए समझ रखा है, तूने कुरान को मरने के लिए समझ रखा है। काश कभी कुरान को जीना सीखा होता, काश कुरान को कभी खुशी के मौके पर पढ़ा होता। तेरे घर पे शादी हो, तू नमाज को भूल जाता है। तेरे घर पे शादी हो, इस्लाम की बेटियां कुरान को बंद करके रख देती है। हर एक चीज की सफाई हो रही है, चादरों की सफाई है, बैग की सफाई है, शीशों की सफाई है, बर्तनों की सफाई है, तकियों धुल रहे हैं, चादरें धुल रही है, मगर जो चीज तेरे सीने को धो रही है कुरान, कुरान की जिल्द पे कब जम गई। कुरान को पढ़ने वाली आप बेटियों ने अपने कुरान को ताकों में सजा कर रख दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते हैं मेरे घर से मस्जिद नबवी का फासला काफी दूर था, मगर सुबह में मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी के लिए जाता। अल्लाहू अकबर। आते नहीं, आते समय तो दिन निकल आता है, आते समय तो सूरज तुलू होने लगता है, मगर फरमाते हैं और उनका जाने का मतलब अज़ान का वक्त नहीं था, बल्कि वो इस टाइम जाते थे जबकि उन्हें नमाज तहज्जुद मिल सके। हज़रत अबू ज़िनाद ताबई कहते हैं, ए इस्लाम की प्यारी बहनों, ए इस्लाम की प्यारी माओ, ए नौजवानों बुजुर्गों, आओ कुरान का फरमान सुनो, आओ मुस्तफा का फरमान सुनो, मुस्तफा के सहाबा का कुरान सुनो, मुस्तफा के सहाबा का फरमान सुनो। अल्लाहू अकबर। हज़रत अबू ज़िनाद के ताबई ये फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाता, सुल्तान साहब आप फरमाते हैं कि मेरे घर से लेकर मस्जिद नबवी तक जितने घर पढ़ते थे, हर एक घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाज फजर में आ रही थी। अबू ज़िनाद ताबई कहते हैं, कोई घर ऐसा न होता जिस घर से सुबह में उठ के अल्लाहू अकबर बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे हैं, नौजवान कुरान पढ़ रहे हैं, घरों की बेटियां कुरान पढ़ रही है। खुदा की कसम, जब उन लोगों ने कुरान पढ़े तो तादाद में कम अगरचे थे, मगर कैसरो किसरा ने उनके तलवों को चूमा था। दुनिया की सुपर पावर उनके कदमों में आ गई थी। वो कुरान भी कहता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ए मौला, जंगे बदर में तो मोमिन कम थे, जालिम ज्यादा थे। अल्लाह जितनी भी जंगों को उठाए, जालिम ज्यादा होते थे। उनके पास में लोहे की तलवारें होती थी, उनके पास में असले होते थे, उनके पास में सवारियां होती थी। मगर जब तारीख का हवाला देखते हैं तो इस्लाम को जीत मिलती है कहां से? रब फरमाता है कि जब सुबह में उठ के जब तुम मेरा जिक्र करोगे, मुझे पुकारोगे, कम मिन फियतिन कलीला गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, तो मैं छोटी छोटी जमातों को बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब कर देता हूँ। इसलिए कि जब आप वक्त आता है, अगर जो उनके पास में पब्लिक हजारों में है, तुम अगर कम तादाद में हो, मगर मैं फरिश्तों को भेज के तुम्हारी मदद कर दूंगा। खुदा की कसम, जंग बदर उठा के देखो, मेरे मुस्तफा ने कहा था, आ मेरे अब्दुल रहमान इधर आ, तलहा इधर आ, जुबैर इधर आ, अनस इधर आ, मुसअब इधर आ। बुलाने के बाद में कहा था, खजूरों की डंडी तोड़ ली मेरे मुस्तफा, तोड़वा ली मुस्तफा ने। कहा अबू तलहा ये तेरी तलवार है, जुबैर ये तेरी तलवार है, अनस ये तेरी तलवार है। जब तक जालिमों के हाथों में लोहे की तलवारें थी, उनके हाथों में भाले थे, मतलब ये कि लोहे के भाले थे, तलवारें थी, उन्हें ये गुरूर था। इनके हाथों में तो ये टहनियां है, मगर वो सहाबा थे, वहाबी न थे। उन्हें यकीन था, खुदा की कसम के मुस्तफा का हाथ डंडी पे लगा है। लोगों ने तमाशा देखा, लोगों ने उस मंजर को देखा। गुरूर के साथ जा रहे थे अबू जहल वाले, गुरूर तकब्बुर के साथ जा रहे थे। तारीख पता है, जिस हाथ से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो डंडी टच हो गई थी, जब वो डंडी लोहे की तलवार पर पड़ती, लोहे की तलवार के दो टुकड़े होकर गिर जाते थे। सालिम कहते थे, ये क्या हुआ? लकड़ी की तलवार ने लोहे की तलवार काट दी। तो अल्लाह ने आवाज दी, ये मेरे पैगंबर का मौजज़ा है, तुम मुझे पुकारो तो सही, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। मगर तू अय्याश कर गया, तू शराबी बन गया, तू जुआरी बन गया, तू झूठा बन गया, तू मक्कार बन गया, इमामों को गाली देने वाला, माँ बापों को गाली देने वाला, मदरसों पे तोहमत लगाने
गिराने वाला, मस्जिदों को रुकवाने वाला, अरे जा तो सही, कुरान पकड़ तो सही, अल्लाह से मदद मांग तो सही। कल भी फरिश्ते उतरे थे, आज भी तेरी मदद के लिए फरिश्ते तैयार हो करने के लिए। इस्लाम न कल झुका था, न आज झुकेगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा अहसानी, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे दोस्त अज़ीज़ान इस्लामियात, हाँ तो सही, तुम कुरान को पढ़ो तो सही, तूने कुरान को ना पढ़ा। एक साल गुजर गया, तीजे में कभी नंबर आया तो 2 रुकू में तेरी हालत खराब हो गई, तेरे पसीने पे, तेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी गुजारने के लिए दौलत का होना जरूरी नहीं है, जिंदगी गुजारने के लिए बंगले और कार और बाइक इंतजाम चीजों का होना जरूरी नहीं है, सेठ कहलाने वाला जरूरी होना नहीं है। बस गुलाम मुस्तफा बन के दिखा दे, खुदा की कसम तेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी। और आयशा फरमाती है, अल्लाहू अकबर, मैं तुझे कहना चाहता हूँ, आज दुनिया का हर एक आदमी या मुझ पे गाड़ी भी हो, मुझ पे बंगला भी हो, मेरे लड़कों की ये संपत्ति भी हो, अल्लाह मालूम नहीं करेगा तूने अपने बेटे को कितनी संपत्ति दी, अल्लाह मालूम करेगा तूने अपने बेटे के हाथ में कुरान दिया या नहीं दिया, तूने दीन की तालीम दी या नहीं दी। अल्लाहू अकबर। ये मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाँ मैं तुझे दौलत के किस्से सुनाऊं, इस्लाम किसे कहते हैं। अम्मा आयशा कहती है, जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहू अकबर, जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए, इंतकाल के वक्त में अल्लाहू अकबर, पीर की सुबह में अल्लाह के नबी का विसाल हुआ, मंगल की रात बुध के दिन आपका दफन मुबारक हुआ। अल्लाहू अकबर फरमाती है कि घर पे ऐसी गुर्बत का वक्त था, तवज्जो चाहूंगा, शराब जलाने के लिए तेल तक न था मुस्तफा के घर में, 3 महीने हो जाते चूल्हे जले हुए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे हजरत उमर तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, उमर ने देखा तो चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात अल्लाह ने आपके सदके तबस्सुम से बनाई है, आप कायनात के मालिक हैं, अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, देखा तो पीछे की दीवार से सर लग रहा है, आगे की दीवार से मोहम्मद रसूलुल्लाह की टांगे टच हो रही है, ऊपर को उठते तो छत से सर लग, मतलब ये सर से छत लग जाती थी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हज़रत उमर ने कहा, मैं आपकी गुर्बत से फिक्र, मतलब ये कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी गुर्बत को फिक्र रो रहा हूँ, पूरी कायनात अल्लाह ने आपके सदके तबस्सुम से बनाई है। तो मेरे आका ने फरमाया, मैंने आखिरत को पसंद किया है, मैंने इस्लाम को गुर्बत में लोगों को दिया है, और ये गरीब लोगों में सिमट के रह जाएगा। वला तमुद्दन ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अस्वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातद दुनिया। तुम काफिरों के छोरों पे जिंदगी पे मत गरूर करना, तुम उनकी जिंदगी पे फिक्र मत करना। काफिर कैसे जीना चाहते हैं, जालिम कैसे जीना चाहते हैं। कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुश्रिकीन फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। इंसानियत की जिंदगी गुजार ले, ईमान वाली जिंदगी गुजार ले, खुदा की कसम जब कब्र से उठेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाएंगे, मेरा सच्चा उम्मती है, गुर्बत को पसंद करके दीन सीने में बसा के आया है, इसे जन्नत में जाने दो। तो याद रख लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीरों की जिंदगी से 500 साल पहले गरीब लोगों को जन्नत में डाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नासिर रज़ा अहसानी, सुभान अल्लाह। सही, आज ये चीज ना हो रही, आज हम परेशान हैं, आज मुसलमान परेशान है, मुसलमान को ट्रेन में मारा जा रहा है, मुसलमान को रोडवेज में मारा जा रहा है, मुसलमान को जमीन पे मारा जा रहा है, मुसलमान के हुकूक न दिए जा रहे। तो पता तो सही मुसलमान किस चीज का नाम है, मुसलमान के माने तो कैसे जिस्म तक कांपते थे। अगर हजरत उमर ने मदीने से नारा लगा दिया तो ईरान इराक मुल्क के शाम में जलजला आ जाता था। आज भी हम हैं, हैदराबाद में कुरान सुनाने के लिए जाते हैं, गैर मुस्लिम अपने बच्चों को हाथों पे लेके आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे दीन में बड़ी ताकत है। जब डॉक्टरों की दवा असर ना करती है तो अल्लाह का जिक्र हमारे बच्चों पे असर करता है, मगर
तूने मुसलमान होने का हक खत्म कर दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये छोटे छोटे बच्चे, ये 30-30 साल के जवान, ये 50-50 साल के बुजुर्ग, इनकी जिंदगी को उठा के देखो, सना इनके याद नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इनके याद रही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इला आखिर वलद आलमीन। मुसलमान के हम्दो शरीफ तक याद नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुसलमान के याद रही। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर इला आखिर ज़ात से जुमले दुआए कुनूत के तेरे तक याद नहीं। बाप जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए दौलत कमा के तुझे ऊंचा किया हो, तो बाप कब्र में मर के मिट्टी में मिल गया, मिट्टी डालने के जुमले तक तेरे याद रही। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम निकाह पढ़ाते हैं, कल भी हमने निकाह पढ़ाया। 80% मुसलमान में इस दौर के बच्चों के निकाह तक याद नहीं है। आगे आगे इमाम पढ़ाया जा रहा है। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। मर गया। अल्लाहू अकबर। अपने बेटे से ये भी कह देता, बेटे 10 लाख मांगे हैं मैंने, बेटे 7 लाख मांगे हैं मैंने। 40 लोगों के सामने तुझे निकाह पढ़ना है। जब मस्जिद के इमाम से जाकर निकाह याद कर ले, कहीं मेरा चेहरा नीचे को ना हो जाए, कहीं तेरा चेहरा नीचे को ना हो जाए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु। कुछ नहीं कहा जा रहा। कभी व क़बिलतु कहता है, कभी अहकामी को एहतमामी कहता है। वो तुझे गैरत ना आती, तू निकाह पढ़ने के लिए बैठा है, मुस्तफा की सुन्नत अदा करने के लिए बैठा है। लानत तेरी जिंदगी पर। ऐसी नौकरी पर मैं लात मारता हूँ जो मुस्तफा का दीन न सीख सको, जो मुस्तफा का कुरान न सीख सको। जो माँ जिसने 2.5 साल की मुद्दत तक 24 महीने तक अपने दूध के कुत्ते तुझे पिला के जवान किया, वो माँ मर के मिट्टी में मिल गई। उस माँ की कब्र पे मिट्टी के जुमले तक तू न दे सका। मुझे बता तो सही, तेरे बंगले का क्या होगा, तेरी गाड़ी का क्या होगा, तेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। मरने के बाद तेरी विरासत, तेरी गाड़ी रह जाएगी, तेरा बंगला रह जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी रह जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं मरने के बाद दुनिया में नहीं, तुझे साथ-साथ कब्र में लेके चलूंगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दुनिया की रोशनी खत्म हो जाएगी कब्र में जाने के बाद। अगर ईशा के बाद तूने सूरह मुल्क पढ़ने का एहतमाम किया होगा, सारी दुनिया की कब्रों में रोशनी होगी, मगर सूरह बकर पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी होगी। कुरान पढ़ तो सही। किसी के बाप की कब्र में अगर लैंडलाइन लगी हो तो बताओ, बल्ब लगा हो तो बताओ, सारी तैयारियां चल रही है, मुझे बता तो सही, उस कब्र का इंतजाम किया या ना किया जिसने हमेशा रहना है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारी हमारी जिंदगी रोजाना तकरीरें होती हैं और शोरा, खुतबा, नुकबा बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। जलसे करना आसान काम नहीं है। गुर्दों में दर्द हो जाता है, फेफड़ों में दर्द हो जाता है, आवाज तक ना निकलती है। रात में आना, 2 बजे जाना, फजर के टाइम उठ के अजान पढ़ाना, नमाज पढ़ाना आसान काम नहीं है। तू तो जलसा सुनने के भी बाद सो गया। कितने लोग ऐसे होंगे जो ईशा के बाद आए होंगे सुनने, मगर न ईशा की नमाज, कहाँ तो ईशा की, बहुत से ऐसे होंगे कि जुमे से पढ़ते होंगे। ये तो अल्लाह का काम है कि मेरे रब ने 8 दिन में जुमा दे दिया, वरना ऐसा है सभी मुसलमान हैं, अगर 8 दिन में जुमा ना आता तो एक साल में मस्जिद के दरवाजे देखता। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर, हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाहू अकबर, कैसे हालात बदलेंगे, कैसे ईमान पर कैसे हालात बदलेंगे, मस्जिदें कैसे बदलेंगी। अल्लाहू अकबर, तेरी मस्जिद पे जरा सा कोई गैर मुस्लिम आके अगर डांस कर ले, अगर मतलब ये कि डांस कर ले, ये वहां पे आने के बाद गाने बजा दे, तेरा दिल तरफ जाता है। हम आज देख रहे हैं मुसलमान की बस्तियों में मस्जिद के बराबर में अगर शादी है, वहीं पे डांस हो रहा है, वहीं पे लड़के नाच रहे हैं, वहीं पे लड़कियां नाच रही है। मस्जिद के तकद्दुस को कमाल कर दिया। शादियां देखो, आज घर, अब तक तो घर तक जिंदा थी। अल्लाहू अकबर, मस्जिद के दरवाजे पे ये इस्लाम की बजिया। अल्लाहू अकबर, सबके बाल खुले पड़े हैं, चचेरी, मुमेरी, फुफेरी, खलेरी, तहेरी, सारी बहने वहां पर आ गई। एक एक बाल अलग है, सर पर दुपट्टों का पता तक नहीं। वहां पर वीडियो बन रही है। क्या अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा? ऐसे में क्या अल्लाह तुम्हें अपना महबूब समझेगा? अल्लाहू अकबर, इस्लाम की बेटियों को देखा जाए,
लेके मस्जिद तक, मस्जिद से लेके कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान से लेके मजार तक शादी के वक्त पे हयाई है, शादियों के वक्तों पे शराबत पी जा रही है। मुसलमान के घरों में जो अमीर घराने हो गए, इधर गैस पार्टी है, इधर शराब की पेटियां खुल रही है, आप दोस्त बियर पिएंगे। अभी बरेली में मौलाना तंजीर साहब, अमरिया सैदपुर के अंदर एक मौलाना साहब है, हमारे दोस्तों में से है, निकाह पढ़ाने के लिए बैठे, जब बैठे हैं तो शराब से मुंह की बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर, मुझे पता तो सही, जालिम तुझे शर्म ना आई। निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए बैठा है। अबे कुत्ते, शराब पीने से पहले मर क्यों न गया था, तुझ पर बारिश क्यों न पड़ गया था? अल्लाह के नबी का मुबारक सुन्नत अदा करने के लिए बैठा है। इमाम साहब आए, मौलाना तंजीर कहते जब निकाह पढ़ाने के लिए बैठा तो मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, मैं पीछे को हट गया। क्या तुमने शराब पी है? कहा मौलाना निकाह पढ़ाना है पढ़ाओ, जो तुम्हारे पैसे चल रहे बताओ। कहा ना मैं पढ़ाऊंगा ना किसी काजी को पढ़ाने दूंगा। चार भाई और आए, चारों के चार, पांचों के पांच शराब में धुत थे। बहन आई, बहन भी शराब पिए, दोस्त भी शराब पिए। जब मुसलमान शादियों में शराब पीगा, जब मुसलमान पर शराब का आदि हो जाएगा तो मुसलमान कटेगा भी, मुसलमान मरेगा भी। मुसलमान हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम में बेहयाई आम हो जाएगी, जब तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे अलग हट जाएंगे, जब तुम्हारी माँ और बहनों के दुपट्टे गिर जाएंगे, जब बेहयाई नंदा नाच नाचेगी तो अल्लाह तुम पाए से बादशाह मुसल्लत कर देगा, तो तुम पर जुल्म करेंगे। न तुम्हारी थाने में सुनी जाएगी, न तुम्हारी कचहरी में सुनी जाएगी, तुम्हारा कोई मुमित मुआविन न होगा। अल्लाह कहता है एक वक्त वो भी आएगा जब तुम कुरान से हट जाओगे, जब तुम दीन इस्लाम से हट जाओगे, लोग तुम्हें घरों से निकालेंगे, तुम्हारी बेटियों को छोड़ेंगे, तुम थाना पहुंचोगे, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार न होगा। दोस्त आ गया वो जमाना, अपनी बेटी के हाथ में कुरान दे दे, अपनी बेटी के हाथ में फातिमा का कल्चर दे दे, खुदा की कसम मर्द मर जाएगी मगर फातिमा के मिशन को छोड़ के नहीं जाएगी। आज लाखों बेटियों ने मंदिरों में जाकर फेरे ले लिए, मुर्तद हो गई। उसकी वजह ये है तूने अपनी बेटी के सर से दुपट्टा उतार दिया, तूने मोबाइल हाथों में दे दिए, तूने कभी मतलब ये है कभी हॉस्पिटलों में, कभी कहीं 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 नौकरियां कराता है, रात में 2-3 बजे। मुझे पता तो सही, काश तूने फातिमा का कल्चर दिया होता, तेरी बेटी मर तो सकती थी मगर कभी गैर के हाथ में अपना हाथ देना पसंद न करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नासिर रज़ा अहसानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। उनसे टोपी के लिए किसी ने मना किया? चलो बैठो जाकर, ये हो रहा है। ये हमने देखा अपने बचपन में, अब से 20-25 साल पहले अगर घर में मिलाद भी होता था तो हिम्मत न की कोई बगैर टोपी के आ जाता। और आज जलसों में देखो मुंह में गुटखा डाल के, बीड़ी पी के, कहनी खैनी रख के सुनना है। अब ये किसका जिक्र हो रहा है? किसका जिक्र हो रहा है? ये 1000 मर्तबा भी मुझको अंबर से चेहरा धोके आ, उससे भी कई करोड़ और वो खरबों जगह बेहतर और आला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए। इसलिए दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मेरे अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई चैनी